नमस्ते, मैं हूँ प्राची दीक्षित फिल्मी बीट से। तो सर, आर्या को लेकर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जब आर्या की शुरुआत मतलब जब आपके पास वो कहानी आई तो आप उसको एक फ़िल्म के तौर पे बनाना चाहते थे, तो अभी आपको वो दुख है कि आप फिल्म नहीं बना पाए, जो कि नॉमिनेशन इंटरनेशनल लेवल पे वो नॉमिनेशन फिल्म को मिला है? नहीं, वो अभी वो दुख है नहीं। तभी मुझे बहुत दुख हुई थी कि वो हुआ नहीं। मैं एक पूरा दिन रोया। I got to know on September 13th at 2 o'clock in the afternoon. I cried till September 14th. Oh my But God. because of that, and because just calling up everybody, I had to call 40 people from the team, all my other actors at that time, to say, sorry, can't make it, it's not happening. And then because of that, Neerja happened, because we were working on Neerja's script simultaneously. And then because of that, Arya happened with Disney Plus Hotstar. And because of that, we received the love. And because of that, we were at the Emmys. And I didn't know the script, you see, because वो जो मेरी ज़िंदगी का जो script जिसने वो जो लिख रही थी लिख रही थी, वो मुझे पता नहीं था कि यार ये सब होगा. But now I'm obviously I could now you see, when I'm working I do give the script to my actors, लेकिन when the universe is working, मुझे वो script नहीं दिया गया. I did not. You're doing fine. I'm doing fine. Okay, so now I know the script. Now in hindsight, I say, oh, this was the plan by the gods. So I'm just happy and thankful, and the love that we've received from the audience and all of y'all, which is a big thing. I didn't know then that this was what was going to happen. अच्छा सर, आप यूनिवर्स में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो हम जब मिस यूनिवर्स में भी बिलीव करते थे. सर, जब आप जब आप इस इंडस्ट्री में हैं तो उस पर मतलब यूनिवर्स पर बिलीव करके चलना मुश्किल होता है या आसान होता है? क्योंकि हर दिन एक नया चैलेंज है, चाहे डायरेक्टर के लिए हो, चाहे एक्टर के लिए हो। वहाँ से एक ताकत मिलती है, वो एक बिलीफ से एक ताकत मिलती है. ऑफ कोर्स जो नहीं होता है या स्ट्रगल्स जो होते हैं वो तो दुख तो होता ही है, बट आई कीप सेइंग दैट आई want to fall backwards into the lap of the universe. तो मैं ऐसे मैं jump करता हूँ पीछे, तो वहाँ कोई रहता है to catch me, and I have found that happening over and over again in my life. The gods of the universe, the gods of cinema are out there and they're protecting me, and they make certain things happen. It takes some struggle, it takes some effort. I have to climb that mountain, and I have to climb the mountain, but eventually I'm protected, and my team, my co-producer Amita Madhwani, Riya Sia, my EPs, my entire team, in some ways is just like the universe, because a lot of the time I do actually ask for a lot, and they're there to as a safety net, and so when I jump off, they're there saying, oh, don't worry, we're here to catch you. But yes, I do believe in that power. और वही तरीका भी है शायद कि आप you believe in that power and you give your best. आप अपना काम करते रहिए and you will realize कि हाँ, जैसे बोल रहे हैं कि पीछे कोई है जो आपको संभाले रहेगा. अच्छा सर, इसमें भी इस बार भी मतलब आपका जो पूरा खेल आर्या में रहा, वो एसीपी जो पूरा दिमाग से खेलता है, सारी चीज़ें करता है. इस वक्त जिस तरह की राइटिंग जो कहानी को लेकर, किरदार को लेकर हो रही है, वो आपको लगता है बहुत बदल चुकी है? एज एसीपी का कैरेक्टर हो या पुलिस का कैरेक्टर हो, पहले क्या होता कि भैया आएगा, मार धाड़ करेगा, सारी चीज़ें ख़त्म. बट अब वो राइटिंग ने बहुत सारी चीज़ें क्या सबके कैरेक्टर्स को बदला है. आप तीनों की क्या राय कि राइटिंग इज़ सबसे बड़ी यूएसपी है फिल्म में? See, first of all, it is based on Fenosa, so there is certain things that are there, but certain things that we've changed and also adapted and fully changed in terms of the plot. And Sandeep Srivastav and Anu Singh Chaudhary were the writers for season 1. Season 2 we have Sanyukta Chawla Sheikh, and we have Anu Singh Chaudhary again as a repeat writer in season 2. And everything that we do is because of them, because it's because they are there that we are here. वहीं से तो शुरुआत होती Yeah, है. and वहीं से create होता है, वहीं से we will be doing a session with the writers and my other directors who've also helped in so many ways on just making sure that we are here, which is there's in season 2 we have Vinod Rawat and Kapil Sharma caps. So it's really, it begins with the word. Without the word and without it being on paper, there is nothing we can do. So even though the actors have the liberty to do find their own space, but they actually क्या है, स्क्रिप्ट है ना, वो रोड मैप होता है, और वो रोड मैप जो है, you don't have to follow the road map, but without the road map you don't know where to go. जी. Exactly.
अच्छा सर, आप बिहार से आए नो, आप ऑडिशन पे जाते थे तो ऑडिशन दे के चले जाते थे, फिर आपको कॉल आता था कि यार डायलॉग के लिए वो सारी चीज़ें, आपने एक बहुत अच्छी और बहुत मतलब स्ट्रगल वाली जर्नी आपने देखी है। तो अगर आप अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या है जो अभी भी आपको उस चीज़ के लिए प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए? मैं इस काम को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, तो प्रेरणा बस वहीं से आ जाती है। और स्ट्रगल, मैं इसको स्ट्रगल की तरह से लेता नहीं हूँ, मैंने चुना है ये, तो मैं उस पूरे जर्नी को एंजॉय करता हूँ। इनफैक्ट आई हैव बीन वेरी लकी इन मैनी वेज कि एक्टिंग के अलावा मैंने डायलॉग कोचिंग भी शुरू की और मेरा घर चलता गया। मैं खुश हूँ, मुझे कोई ऐसी, मैं उसे स्ट्रगल नहीं कहूँगा। तो ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, पर्दे के पीछे रह के वो डायलॉग कोचिंग करना या पर्दे के आगे आकर उससे निभाना, उसी तरह करना जैसे आप एक्टरों को सिखाते थे? दोनों चैलेंजिंग हैं अपने अपने हिसाब से। एक तरफ आप किसी और का लिखा हुआ आप निभा रहे हैं, एक तरफ आप किसी एक्टर को हेल्प कर रहे हैं एज डायलॉग कोच, लेकिन सब निर्भर करता है उन पर कि आपका काम कितना निखर के आता है। और जब भी निखर के आता है तो मैं पूरा क्रेडिट एक्टर को ही देता हूँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है उसको निभा पाना। तो अगर जहाँ भी किसी का काम सराहा गया है, जहाँ मैंने पीछे से थोड़ी मदद की हो, तो वो सारा क्रेडिट उधर है कि वो कर पाए वैसा। अच्छा सर, इस सीरीज़ में जैसा ट्रेलर 2 में देखा जा रहा है कि आपका किरदार बदला लेने वाला है, तो अगर आप कुछ आपके कैरेक्टर पे कुछ रोशनी डालें कि मतलब क्या किस तरह का चीज़ें हैं? देखो, जिस तरीके से मैंने इंटरप्रेट किया वो ये है कि एक बाप है जिसने अपना बेटा खोया है और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं खोया है, उसकी एक वजह थी। तो एक तो ज़बरदस्त गम है जो दिल में वो लेके आया है, और दूसरा कहीं पर उसकी अकल कहती है कि इसको चाहे बदला कहिए या कुछ, कि जो जस्ट डिज़र्ट्स होते हैं, जिन्होंने काम किया है उस किस्म का, जिसकी वजह से मेरा किरदार का बेटा गुजरा है, वो सबक तो सिखाना है। तो उस लिहाज से एज अ ह्यूमन, जो रोज़मर्रा में किसी की ज़िंदगी में भी हो सकता है, एक लॉस है और सबक सिखाना है। तो उस फाउंडेशन से लेके एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे मैंने इस किरदार को डेवलप किया, और फिर इनकी गाइडेंस और टेक्स्ट की गाइडेंस तो थी। It's a show about family eventually, and I think that beyond the loss of a son, it is that emotion. So though he is playing the antagonist, there is an emotional need and a reason. So I think that is really what we are interested in, which is and which is what Akash has played in, is which you've seen, that there is a certain एक जो आँख में एक वो feeling आता है, where you feel for him also, which is not because you feel for Arya, but you also have to feel for him because what has happened to him. अच्छा सर, आपके डायरेक्शन को अगर एक तरफ रखा जा रहे हैं, आप दोनों के अभिनय को एक तरफ रखा जाए, तो जब आप एज ऑडियंस आर्या 1 को देखते हैं, खैर 2 तो अभी आई नहीं, आप तीनों का पसंदीदा किरदार कौन सा है? क्योंकि ये सिर्फ एक कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल है, Yeah. पर एक तो आर्या है और एक तो है ही। और जैसा मैं कह चुका हूँ कि थोड़ा अलग एंगल से बोलता हूँ कि अगर एक और किरदार कोई अगर मुझे दिया जाता है या मैं करना चाहता, वो दौलत है। क्योंकि मैं पहले जो भी काम किए मैंने बहुत बोलता था, तो मेरा था कि मैं थोड़ा कम बोलने वाला, तो दौलत क्योंकि चुपचाप रहता है और वो बहुत चैलेंजिंग भी होता है उसमें इमोट करना, तो ये दोनों सिर्फ इसलिए, वैसे तो सब पसंद है, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और जैसा बोलते हैं कि वो प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट वगैरह तो होता है, लेकिन सबकी वजह है। सो यू नो, यू ट्रैवल विद एवरी कैरेक्टर एंड यू नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, जो भी वो कर रहे हैं। सर आपके लिए? I like Arundhati's character. Okay. She, even in season 2, you will see what happens to her. I feel for that. I think that I want to reach out to the youth and what they're going through. And that's a character that is a fascinating character. And I'm hoping that when you see how she progresses in season 2, you'll also be interested in that, you know, sort of life. So that would be my, like, sort of, I like everybody, so they're like, otherwise, you know, he'll be saying why you didn't like me, and so, but even Sushmita, obviously Arya, but yes, Arundhati. अच्छा सर, सुष्मिता सेन की बात करें, आपने उनकी कास्टिंग की, सारी चीज़ें हुई, बट कैमरे के सामने वो स्टेज कब आया कि आपको लगा कि नहीं यही मेरी आर्या है?
It's not something that you see. First, Shushmita Sen ने हाँ बोला, वो तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, because there were many other projects that she had said no to. और जब it was more her coming to know that she is Arya, and I think that the more she became confident as the shooting went on, that because eventually I'm not at any, like मैं यहाँ direct नहीं करता हूँ in that traditional kind of a way, मैं बताता नहीं हूँ कि आपको ऐसे ही acting करना है. I'm drawing from who the human being is also, and we could not have had a better fit for Shushmita Sen. So I would say that she has been Arya for many years before even Arya was written. So it just fits so correctly there. So I like really am blessed that she said yes. अच्छा सर, एक जब फिल्म डायरेक्ट होती है और एक जो टीवी मतलब एक जो वेब शो डायरेक्शन होता है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है. नो वेब पे मेरे ख्याल से खेलने का काफ़ी मौका मिलता है एज अ डायरेक्टर. तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था या कितना दिलचस्प था, यू नो, क्योंकि हर एपिसोड को आपको उतना ही दिलचस्प बनाना है ऑडियंस के लिए. So what happens is that is the director in a web series as important as a director in a movie? Yeah. Because web series में अलग अलग director होते हैं, and web series में जो create करते हैं, that is the main person, कि जो किसका जो vision जो है, किसका voice जो है, because the job of a director is to have a vision and pass it on. But यहाँ क्या होता है, जो director आते जाते हैं, it's not, they're not the people actually controlling the whole thing. So obviously I am a director, I'm one of the co-directors, Vinod Rawat, Kapil Sharma, the other directors, but I'm also the creator. And therefore this duality that you have to be, which is you have to look at the whole vision of the whole show, from the editing to the music to the scripting to the acting, and that is really what is very exciting about making series, which is that you are now not just conducting like in a normal movie, but you are also conducting other directors. And I think that is what is exciting as a creator, and a creator, because I'm obviously borrowing from Penosa, so I can't say I've created it, but certainly for India I have created it. So I think that that is the exciting change, which is sometimes I ask myself, is the director dead? Is the idea of a director as a person who, you know, the kind of respect that you get as a director in movies. In shows, you don't even know who the director is a lot of the time. You only know the creator's name. Directors aate jate hain. And so I think that that is the big change which has happened between, but the job remains the same. Whose vision is it? That is really the big change over here. So I would hate to just be a director for somebody else. अच्छा, मैं आप तीनों से एक सवाल जानना चाहूँगी, यू नो, कि जिस तरह से कोविड में OTT प्लेटफॉर्म उठकर आया है, तो ऐसा एक सिनेरियो मतलब ऐसे दिख रहा है कि अब कंटेंट किंग है, स्टार्स पीछे छूट चुके हैं. आप भी यही मानते हैं? देखो जी, सिस्टम्स दोनों को एग्जिस्ट करेंगे. ओके. कहीं पर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो मास ऑडियंस की है, उसमें इतनी तब्दीली इतनी जल्दी आना, ये हो सकता है कि स्टार से आदत छूट गई हो तो एक रिवाइवल की ज़रूरत पड़े. लेकिन हिस्ट्री बताती है, चाहे वेस्ट में भी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, बाकी जो आपके सुपर हीरो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इमोशनल भी है, इंडी फिल्म्स भी हैं. तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह रहेगी, बट स्टार की अहमियत होने के लिए स्टार्स लगते हैं. अब जो एक जनरेशन हमने देखी थी, जो नॉन सोशल मीडिया जनरेशन थी, उसमें वो मुमकिन था क्योंकि दे वर अनरीचेबल. Stars are not meant to be अब touchable. आपके घर में है, आप उनको फूंक सकते हो, आपको भगवान मान सकते हो, आप गिरा सकते हो. पहले भी वैसे था, लेकिन अब ज़्यादा आसान हो गया. तो उस किस्म की स्टारडम बरकरार रखना शायद चैलेंज स्टार्स के लिए बढ़ गया है. बट सिस्टम जो होता है, बिकॉज ऑफ द मनी इज इन्वॉल्व, वो को एग्जिस्ट करेगा. And thank God for that. We're very happy कि दोनों है. सबके जगह. Yeah, exactly. सर आपके लिए? नहीं, मेरा भी वही मानना है कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, और धीरे धीरे वो वक्त आएगा जब अभी थोड़ा सा ऑफकोर्स कोविड के कारण घर में बैठ के OTT व्यूइंग ज़्यादा है. जब
चीज़ें बेहतर होंगी तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगी और दैट्स अ गुड सिनारियो सबके लिए। अच्छा राम सर, आर्या सिर्फ आर्या की ही कहानी नहीं है, ये एक फैमिली ड्रामा है ना, कई सारे किरदार है, कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा किरदार आपके लिए रहा, उसकी कास्टिंग करना आपके लिए? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, तब तक मैं सोचता हूँ। गुड क्वेश्चन। Yeah, exactly. It's अच्छा a very, पंगा लिया बहुत आपने। बहुत बहुत अच्छा लिया। Whose character was the toughest to cast? No, I want to answer this without saying that every character was tough to cast, but I want to, obviously every character is a tough casting decision. But whose character was it the toughest to cast? Now, really, you please ask the next question. I want to go back to in my memory to understand which one actually was, which we went through so many decisions. But I remember even for Daulat's character, even for Shekhawat Jr.'s character, there were many actors who came and tested. And eventually, so those were a lot of casting conversations with Sandeep Modi at that time and myself and Vinod Rawat in season 1. A lot of casting decisions which also Sandeep Modi made, which were you know, sort of things which he said, "Mujhe yahan namak chahiye, mujhe yahan ek not the same type." And with Abhimanyu Ray, who's our casting director. So they were in everything that we were doing. I would say that Daulat was a tough decision because that character had to speak with their eyes, and you have to really feel for some, and he does something very bad, but still you have to feel for him. And I think that I'm so happy Sikandar said yes eventually, and that, you know, Abhimanyu Ray, like, you know, sort of said that why don't we check with Sikandar, and he was like, he just fit. But you know, sometimes what happens is, I think casting again happens when a show is blessed. वो अपने आप जब वो एक time आता है ना, the right people just came in and the right people were casted, and I don't think that again it's really in our hands so much as the universe's hands. वो होता है ऐसा, meaning why did Sikandar say yes, why did Akash say yes, why did Vikas say yes, and these are, you can't believe that anybody else could play those characters. अच्छा सर, आर्या 2 आपके करियर का एक बोलते अच्छा मतलब बेस्ट डिसीजन रहा है इसे करना, आर्या 1 और आर्या 2 का? जी, आर्या के लिए जो मुझे रिस्पांस मिला है उस हिसाब से तो जी सबसे अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सराहा गया है, लोगों ने पसंद किया है, और जो सक्सेस देखा है शो ने, जिसके कारण हम सबको फ़ायदा होता है, एक बार शो सक्सेसफुल होता है तो फिर कैरेक्टर भी सक्सेसफुल हुआ है, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए उस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। अच्छा, आर्या सिर्फ एक बोलते ना, एक कई बार ये होता है ना, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो उसे ये कहा जाता है वुमेन ओरिएंटेड सिनेमा या महिला आधारित फिल्म है, बट जब कोई बोलते ना एक स्टार की फिल्म आती है ना, जिसमें एक स्टार हो, कलाकार हो, उसे कभी भी पुरुष प्रधान या बोलते ना मैन ओरिएंटेड सिनेमा नहीं कहा जाता। तो ये जो सोच है, इस सोच पे आप लोगों की पर्सनल राय क्या है कि ये सही है, मतलब वैन वुमेन मैन आ जाता है, क्योंकि इवन हम लोग भी वो लिख देते हैं ना कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, महिला आधारित फिल्म है। ये कंडीशनिंग है समाज की, जिसको आप पेट्रियार्की कहिए, फेमिनिज्म का एक अजीब लेबल है, बट एक फिल्म थी गुड्डी, लेबल नहीं लगा, शायद क्रिटिक ने ओरिएंटेड भी नहीं बोला होगा, पर कहानी तो गुड्डी की थी ना। तो यू नो, अ यंग गर्ल, सो वुमन, गर्ल वुमन व्हाटएवर was oriented. Yeah, I don't think they called Mother India. Mother They India, never said Mother India was a woman oriented. बिमल रॉय, Yeah. सुजाता, Yeah. बंधनी, Yeah. ये एक कंडीशनिंग होती है। मोमेंट यू गेट इनटू से एन अल्फा मेल सिचुएशन, वो भारी पड़ जाता है बाकी इक्वेशंस के ऊपर, तो उसको लेबल देना कन्वीनियंट, इजी हो जाता है। आर्या फॉर द कॉमन पर्सन इज अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, but it's still a human drama. तो ये I think labels are convenient ways of, you know, for society to just make a point of something. But ये तो सदियों से woman oriented चल रहा है, male oriented भी रहा है, बाकी equality की बात है, कुछ जायज़ भी है, but I'm saying ये नहीं है कि issue आज का है. There were directors who were favoring the female protagonist अरसे से.
अच्छा सर, Well answered, sir. या Thank you. वेरी वेल। You took away that you, I mean, fully all. जहाँ विजडम Yeah. की ज़्यादा ज़रूरत होती है हम बढ़ा देते हैं नहीं, आगे। but did it make sense to her? अच्छा। या Okay, Yeah, but चलो। that's what these people don't matter. अच्छा सर, आपके लाइफ की आर्या कौन है, नो पर्सनल लाइफ की? Good question. Good question. There'll be a fairly universal answer on this, some tactical, some otherwise, but the mother is a symbol. Yeah. So in fact, if you see the last line of the trailer, I'm just a working mother. चाहे कितने भी जोखिम उठाना हो, challenges हो, mother is a working mother. हम मेरी जिंदगी में माँ है, बाकी तो all the other relationships follow. तो सर आप मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी है। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, तो मैं मेरी पत्नी को अब जब मैं माँ के रोल में देखता हूँ और मुझे भी संभालती हैं, घर संभालती हैं, तो वो वर्किंग मदर वाला जो कॉन्सेप्ट, तो मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी है, रावी नाम है उनका। For me, it's Amitabh because my co-producer, and so that is like my mother expired this year. So the most important woman in my life right now is my wife. थैंक यू सो मच, आप तीनों ने Thank समय थैंक दिया यू सो इसके लिए। मच। थैंक यू थैंक यू।